فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کل ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو ہم مسلمانوں کا حال ہے، اس کو علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا ہے. گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور مؤذن چپ ہوا اذان کہتے کہتے. برادران اسلام، ہمارے گھروں میں اکثر ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، مگر پورے سال میں کبھی بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے. اس پر گرد و غبار جم جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن شریف کے اوپر دھول پڑ جاتی ہے، لیکن ہم قرآن شریف کو اٹھا کر کبھی دیکھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنا شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے: میری الماری سے گرد سے اٹھی کتاب کے بارے میں جو کسی نے پوچھا، میری الماری سے گرد سے اٹھی کتاب کے بارے میں جو کسی نے پوچھا، میں زمین پر گر گیا قرآن کہتے کہتے، میں زمین پر گر گیا قرآن کہتے کہتے. معزز حاضرین، ہم اور آپ بہت ہی گنہگار ہیں. اگر رب تعالیٰ ہمارے ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ فرمائے، گرفت فرمائے، تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. مگر ہم سب کو اس بات کی امید ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری مغفرت کے لیے اشارہ فرما دے تو ہم اور آپ کیا کہ ہمارے جیسے لاکھوں گنہگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا. ایک میں کیا میری عصیاء کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. معزز حاضرین، آئیے سب سے پہلے بھیک دینے والے داتا، فرش اور شکر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جس کے ہم نشین ہیں، اس عالی مرتبت بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کیجئے اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، بچے تو میری بات کو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ میں چند احادیث اور چند قرآن آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کچھ مسائل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ وضو کے فرضیت کا، وضو کے فرائض کا ذکر فرماتا ہے. اور وضو کے بارے میں نے آپ کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ وضو کی ضرورت غالباً تمام مسلمانوں کو پڑتی ہے، اس لیے کہ روزانہ دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں. اگر کوئی 5 وقت نماز نہیں ادا کرتا تو ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز تو ادا کر ہی لیتا ہے. اگر کسی کو جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے تو سال میں عید اور بقرعید 2 دن عید کی نمازیں ادا تو کر ہی لیتا ہوگا. اگر کسی کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی ہوگی تو اپنے رشتہ داروں کی نماز جنازہ تو پڑھ ہی لیتا ہوگا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وضو کے بارے میں ذکر کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو، سب مسلمانوں کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں، اگر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ وضو کا حکم کہاں ہے، قرآن شریف میں آیا ہے یا حدیث شریف میں آیا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो सुनो, मैं आपके सामने आपको बताता चलूं। वुजू का जिक्र, वुजू का हुक्म कुरान मुकद्दस में है। पारा नंबर 6, सूरत का नाम है सूरह माइदा। वुजू का जिक्र करते हुए रब ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ए ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो लो, अपने चेहरा को धो लो। और चेहरा कहां से कहां तक धोना है? बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। वाइदियकुम इलल मराफिक, और दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लो। वमसहू बिरूसिकुम, अपने सर का मसा करो। और सर का मसा कितना करना है कि सर को 4 हिस्सा करना है, 4 में डिवाइड करना है। 4 में डिवाइड करके उनमें से एक हिस्सा का मसा करना है, यानी 1/4 मसा करना है। वमसहू बिरूसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन, अपने दोनों पांव को टखने समेत धो लो। ये वुजू में 4 फराइज है। वुजू में 4 फराइज और 4 फर्ज हैं। चेहरे का धोना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और दोनों पांव का टखने समेत धोना। और जब कोई बंदा मोमिन वुजू करता है तो उसको कितना सवाब मिलता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई वुजू करे और कामिल वुजू करे और फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यह है वुजू की फजीलत, यह है वुजू की बरकत। और इमाम मालिक मुनसई हजरत अब्दुल्लाह सुनाबिही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन वुजू करता है तो कुल्ली करने से उसके मुंह के गुनाह निकल जाते हैं। जब नाक साफ करता है, नाक में पानी डालकर नाक साफ करता है तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं। जब चेहरा धोता है, मुंह धोता है तो चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह निकल जाते हैं। जब सर का मसह करता है तो सर के गुनाह निकल जाते हैं। जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह निकल जाता है। यहाँ तक कि वुजू मुकम्मल होता है तो बंदा पूरे तौर पर गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरात, इस महफिल में, इस मजलिस में जितने लोग हैं, मैं आप लोगों से अगर अर्ज करूं, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है, कोई एक शख्स कह दे कि हजरत मैं वुजू कर रहा था, वुजू के पानी के साथ साथ मैंने गुनाहों को भी झड़ते देखा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस महफिल में ऐसा एक शख्स नहीं मिलेगा जो कहे कि हजरत मैं वुजू बना रहा था, वुजू बनाते बनाते मैंने वुजू के पानी के साथ साथ गुनाहों को भी झड़ते देखा है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी रिवायत पेश करूंगा जिन्होंने वुजू के पानी के साथ साथ गुनाहों को झड़ते हुए भी देखा। मैं यह हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। किताब का नाम है मीज़ानुल शरीअतिल कुबरा, राइटर का नाम है, मुसन्निफ का नाम है अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं हमारे और आपके इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, क्या आप कूफा की जामे मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, वहां ले जाने के बाद कूफा की जामे मस्जिद के वुजू खाने में आप तशरीफ ले जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक शख्स वुजू बनाता है, एक नौजवान वुजू बनाता है, तो आप उससे फरमाते हैं ए मेरे बेटे माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। उसने अर्ज किया हुजूर मैंने तौबा की। फिर आप एक कुछ आगे चलते हैं और एक नौजवान के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं ए मेरे भाई जिना से तौबा कर ले। उसने अर्ज की मैंने तौबा की। फिर आप आगे चलते हैं, एक तीसरे शख्स के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर उससे फरमाते हैं ए मेरे भाई शराब नोशी और गाने बजाने से कर ले, गाने बजाने से तू तौबा कर ले। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने तौबा की। हुजूर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह वुजू खाना से तशरीफ ले जाते हैं
ले जा वहां से तशरीफ ले जाना चाहते हैं कि लोग चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर आपसे तो हमारी मुलाकात नहीं है, आपसे तो हमारी शनासाई नहीं है, आप तो हमें नहीं पहचानते हैं, मैं फुला इलाके से रहता हूँ, आपकी और मेरी जान पहचान नहीं है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि इसने जिना किया है, आपको कैसे मालूम कि ये माँ बाप की नाफरमानी करता है, आपको कैसे मालूम कि ये शराब नोशी करता है, आपको कैसे मालूम कि ये गाना बजाता है। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने उस वक्त जवाब दिया, सुनो मुसलमानों, मेरे अजीजों इस जवाब को गौर से सुनो। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, सुनो जमीन अपनी जगह से टल सकती है, जमीन अपनी जगह से टल सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का फरमान अपनी जगह से टल नहीं सकता। मेरे मुस्तफा का फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन वुज़ू करता है तो वुज़ू के पानी के कतरात के साथ साथ उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। और रब ताला ने मुझे इबादत करते करते मेरी आंखों में वो रोशनी दे दी, वो नूर दे दिया है कि जब कोई बंदा वुज़ू करता है तो मैं वुज़ू के पानी के साथ साथ उसके झड़ने वाले गुनाह को भी देख लेता हूँ और उसे पहचान भी लेता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो हजरात, जब कोई बंदा वुज़ू करता है तो वुज़ू के पानी के साथ साथ उसके गुनाह भी झड़ता है। उनकी आंखों में रोशनी कहाँ से आई? इमाम आजम के बारे में आता है कि उन्होंने 40 साल अदा की, तब जाके उनके आंखों में ये रोशनी आई, ये नूर आया। लेकिन आज हमारे आंखों में वो रोशनी क्यों नहीं? कि आज हम कहवा खानों और होटलों में बैठकर अय्याशियां करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, गीबत और चुगलखोरी में मशगूल रहते हैं। हमारा माहौल, हमारा सिस्टम, हमारा निजाम इतना खराब हो गया है कि हमारे घरों में हमारे बच्चे जब अजान होती है उस वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी हमारे घरों में चलती रहती है, अजान के वक्त भी हमारे घरों की टीवियां बंद नहीं होती, हमारे मोबाइल बंद नहीं होते, हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं होती। फतवा हिंदिया में है, फस्लुस्सान किताबुस्सलात अल फस्लुस्सानी फिल अज़ान में ये मसला है। और बाहर शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान भी तहरीर फरमाते हैं कि जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिए सलाम, कलाम और जवाब सलाम तमाम अशकाल मौकूफ कर दें। यानी अज़ान के वक्त ना किसी को सलाम करें, ना किसी के सलाम का जवाब दें, तमाम अशकाल, तमाम काम बंद कर दें। यहाँ तक कि कुरान मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज आए तो तिलावत को मौकूफ कर दें, उतनी देर तिलावत को बंद कर दें और अज़ान गौर से सुने और उसका जवाब दें। यूं ही इकामत में। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फतवा रज़िया शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, जो शख्स अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहे उस पर मादल्ला खात्मा बुरा होने का अंदेशा है, खातिमा बुरा होने का खौफ है। यानी हो सकता है कि उसकी मौत के वक्त उसकी जबान गूंगी हो जाए या उसको मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो। हजरात, और हदीस शरीफ है, इब्ने माजा की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुमुल मुअद्दिना फक़ूलू मिस्ला मा यक़ूल, जब तुम मुअज्जिन से अज़ान सुनो तो जो वो कहता है तुम भी कहो, जो वो कहता है तुम भी कहो। यानी अज़ान का जवाब दो। और अज़ान के जवाब देने का तरीका क्या है? यानी जो कलिमा मुअज्जिन कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलिमा कहे, मगर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। और बेहतर है कि दोनों कह लें। और इसी तरह फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता कहें। अब आपको मैं हदीस सुनाऊं, जब कोई बंदा अज़ान का जवाब देता है तो उसको कितना सवाब मिलता है। इब्ने असाकिर ने रिवायत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بلال سے اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کلمہ کے بدلے میں 1,00,000 نیکی لکھے گا، 1,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہوں کو محو کر دے گا، 1,000 گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے گناہ ہے، مردوں کے لیے ڈبل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن اذان کا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمہ کے بدلے میں 2,00,000 نیکی دے گا، 2,000 درجے بلند فرمائے گا اور 2,000 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ لیکن حضرات افسوس کی بات ہے ہم ان مسائل کو آشنا، ان مسائل سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تو آج یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کا کام سمجھنا، دین